Hello students, today our topic is forms of business organization. When a person thinks that he should do a business, first thing that comes to his mind is what form of business organization he should choose. So this is our new topic now, let us consider it. So when a person thinks that I should start a business, then different forms of business organizations he studies, then choose according to his requirements and think that this form of organization is best for him. So we are talking about different forms of organization that we will read in forms of business organization chapter. There are some other organizations also we will do in business studies subject in further chapters. So let us consider one by one we will do in this chapter. First is sole proprietorship. What is sole proprietorship? When a person thinks that he should do a business, when he is single owner of the business. He starts business as a single owner. He invests money in the business as single owner, and if some requirements are there, he takes loan from outside. So, sole proprietorship, we can say a single owner starts a business and he do small business at small level because the capital required in sole proprietorship is limited, because one man is there, so capital is limited, so he do small business. अगर हम सोल ट्रेडरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो एक सिंगल ऑनर है जो वो बिजनेस स्टार्ट जब सोचता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, तो उसके पास एक लिमिटेड कैपिटल होती है, लिमिटेड अमाउंट होती है जिससे वो बिजनेस स्टार्ट करता है. तो उस लिमिटेड अमाउंट के साथ जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं. तो वो ऑनर जो होता है वही लायबल होता है सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए. सभी एक्टिविटीज़ भी ऑनर ही करता है और सभी लायबिलिटीज़ के लिए भी ऑनर ही लायबल है. तो बेसिकली वो स्मॉल बिजनेस में डील करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं, सो वो उसको डील कर सकता है. सो वी कैन सी हियर स्मॉल बिजनेस, ही डू स्मॉल बिजनेस एंड द बिजनेस इज ओन्ड बाय हिमसेल्फ, managed by himself and controlled by himself. He is the only person. Sole proprietorship, in sole proprietorship, sole trader is the only person who own the business and who control it and who manage it. So everything is done by single person, that is sole trader. So अगर हम ये सोचें कि सोल ट्रेडर है तो सब कुछ वो सिंगल ऑनर ही है जो सब काम करता है, सभी एक्टिविटीज़ करता है, तो डे टू डे बिजनेस में भी वही सारी डीलिंग्स करता है, मैनेज करता है, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करता है अपने स्मॉल बिजनेस को चलाने के लिए. तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी कन्फेक्शनरी स्टोर है या क्लोथ्स की शॉप है, कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस जो एक सिंगल पर्सन रन कर रहा है, तो अपने असिस्टेंस के लिए वो वर्कर्स जरूर रख लेता है, अपने साथ हेल्पर्स रख लेता है, बट जो ओनर होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक सिंगल पर्सन की होती है. दैट मीन्स कि वो सोल ट्रेडर की होती है. तो इसमें हम डीपली जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम डीपली इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ डीपली रीड करेंगे. Next is partnership firm. What is partnership firm? In sole trader we know that requirement of capital and the capital is limited. Investment of capital is limited. So if a person think that there should be some other person also so that his business can be run on large scale. So when he want to expand his business, a sole trader or any person
wants to expand his business, already started business, or whether he is starting a new business, two or more persons when join hand together to start a new business, that is known as partnership firm. In partnership firm, two persons are required, at least minimum 2 persons should be there for partnership firm. पार्टनरशिप फर्म होने के लिए कम से कम 2 लोग ज़रूरी हैं, तभी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो सकती है। और वो कब स्टार्ट होती है? जब सोल ट्रेडर के पास में भी हो सकता है उसके पास इन्वेस्टमेंट कम हो, तो वो ये सोचे कि अगर पार्टनरशिप स्टार्ट कर लें, किसी और को एज अ पार्टनर में ले लूँ, तो हो सकता है मेरे पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जो वो बढ़ जाएगी, मेरे पास कैपिटल बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट्स मेरी बढ़ जाएंगी और बिजनेस लार्ज स्केल पे हो जाएगा। तो या तो वो सोल ट्रेडर भी हो सकता है एक पार्टनरशिप को अपने बिजनेस में एक्सपेंड करने वाला, या फिर कुछ अलग से पर्सन्स हो सकते हैं जो 2-3 पर्सन्स हैं, वो ये अगर सोचें कि चलो हम मिल के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म होती है। एट लीस्ट 2 persons should be there in partnership and there is no limit in the partnership firm for maximum limit of members. But according to Indian Partnership Act 1932, Indian Companies Act says that the limit should be maximum 50. So according to Indian Companies Act, maximum 50 persons can be there in partnership. So when we start partnership firm, it is governed by Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932 है जिसके अंडर सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पार्टनरशिप फर्म फॉलो करेगी, तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के करेगी। इसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स मिलके एक डीड बनाते हैं। डीड मीन्स एग्रीमेंट, तो वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको वो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं जिस पे वो पार्टनर्स एग्री करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में वो सारी चीज़ें वो लिखते हैं जिस पे 1 या 2 और सभी मिलके पार्टनर्स एग्री करते हैं, जिसमें वो या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख लेते हैं अपनी, कि हम अगर प्रॉफिट होगा तो किस रेशो में बांटेंगे, कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, एक्टिविटीज़ अगर बिजनेस की हैं तो किसका पार्टिसिपेशन है, कौन एक्टिव पार्टनर है और कौन स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। एक्टिव पार्टनर मीन्स कि बिजनेस में कौन पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। दैट मीन्स कि वो पार्टनर्स वो जस्ट एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए ही आते हैं और उनको हम प्रॉफिट्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पार्टनरशिप फर्म में पढ़ेंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एवरीथिंग अबाउट पार्टनरशिप फर्म, डीड एंड एवरीथिंग। सो नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो दिस इज द बिजनेस in which a Hindu family starts a business where Karta, the main head of the family, is the owner of the business. The Karta is the head of the family and he is the owner of the business, and the members, the other members of the house, the male members are co-personaries. So it follows Hindu law. तो अगर हम ये देखें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक हिंदू फैमिली के सभी पर्सन्स मिलके, मेल पर्सन्स मिलके बिजनेस करते हैं, तो जो कर्ता होता है वो हेड ऑफ द फैमिली, वो ऑनर होता है बिजनेस का, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं उसकी अनलिमिटेड होती है। दैट मीन्स कि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लायबल होता है पे करने के लिए, इन केस अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ना हो लॉसेस के केस में, और जो बाकी के मेंबर्स हैं वो अपने शेयर तक ही लिमिटेड होते हैं। तो इसमें हम हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स व्हेन इन अ सोसाइटी some members, society means when some members
jointly do something for a common target and common purpose, and the purpose is welfare. So common purpose should be there and the purpose should be for the welfare of the different sectors of the society. So they work together. For example, there is producer cooperative society, consumer cooperative society. If we talk about producer cooperative society, then those cooperative societies are the producer cooperative societies which help or which assist to producers. So we have different type of societies we will read in the chapter. तो अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें कुछ मेंबर्स मिलके सोशल वेलफेयर के लिए मिलके बिजनेस करते हैं और जो बिजनेस होता है वो उसका मेन टारगेट होता है वेलफेयर. सो ये हम चैप्टर में रीडिंग करेंगे. नेक्स्ट इज कंपनी. व्हाट इज कंपनी? अगर हम सोचें कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमने सोचा कि हमारे पास सोल ट्रेडर है, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो उसने पार्टनरशिप पे शिफ्ट किया. तो अगर पार्टनरशिप कुछ पर्सन्स मिलके इन्वेस्ट करके बिजनेस कर रहे हैं बट फिर भी वो अपना एक्सपैंड करना चाहते हैं बिजनेस, तो वो कंपनी पे स्विच ओवर करते हैं. तो कंपनी में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो अगर कंपनी बनानी है तो कंपनी एक सेपरेट पर्सन है. वी कैन से दैट इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ही हम कंपनी बोलते हैं. ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कंपनी बोलते हैं. तो इसकी एक कॉमन सील होती है, तो उसी सील को ही बेसिक टारगेट जो है हमारा सभी डॉक्यूमेंट्स पे वो सील ही यूज़ होती है. तो कंपनीज एक्ट 1956 को कंपनीज जो है फॉर्मुलेट करती हैं, तो उसको गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 1956. तो अगर हम कंपनीज की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो पब्लिक है जो कंपनी में इन्वेस्ट करती है एज शेयर्स, इन्वेस्टमेंट एज शेयर्स, तो वो क्या करती है कि उनके पब्लिक जो है वो कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करती है एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जो सभी डिसीजंस होते हैं कंपनी के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं. तो कंपनी बेसिकली शेयर इशू करती है फॉर इनवाइटिंग द पर्सन्स टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस. So persons invest in the business. So there is this is the explanation of company. So we will do the forms of business organization. Different forms we will do in this chapter. So a person can do any type of business according to the capital requirement and everything which he think that this business is best suitable for him.